Hello everyone, continue with the same chapter, chapter number 7, triangles. In previous module we have done some examples of this chapter. Now in this module we are doing the rest examples of this chapter. Now 4 examples we have done. Example number 5. E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC. See figure 7.28. Show that BF equals to CE. Now here we have one triangle ABC. As you can see, you have one triangle in which AB and AC are the equal sides. So AB equals to AC, it is given to us. So AB equals to AC is given to us. ठीक है. एंड व्हाट वी हैव टू शो बी एफ इक्वल्स टू सी ई. ये जो आपका बी एफ है दैट इज इक्वल्स टू सी ई आपको शो करना है. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग triangle A, B and F, this triangle, and second triangle we are taking A, C and E. Now as you can see in both the triangles angle A is common. So angle A equals to angle A, it is common, and AB equals to AC, side AB, this side, ये side full side AB and AC, it is given equal, and AF equals to AE, this AF equals to AE. Why AF equals to AE? Because AB equals to AC, or half of the side AB is AE and half of the side AC is AF. तो halves of equal sides, क्योंकि आपको AB equals to AC equal given है तो उनके हाफ भी क्या हो जाएंगे आपके, हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, और हाफ ऑफ AB को यू कैन राइट AE एंड हाफ ऑफ AC को यू कैन राइट AF. तो हियर बाय SAS congruency rule these two triangles are congruent, so BF equals to CE by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. So as you can see SAS rule A, B and F, this one is your ABF. So in this side AB, this side AF and angle A, so two sides and angle between them. So SAS by SAS rule these two triangles are congruent, and this one is by CPCT. Now example number 6. In an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, D and E are points on BC such that BE equals to CD. Show that AD equals to AE. Now this is the figure. One triangle ABC is there and D and E are the points on BC. Now what is given? AB equals to AC, this side equals to this side given है, and BE equals to CD. ये जो आपका BE यहाँ से यहाँ तक है, and CD आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये दोनों आपका इक्वल है. ठीक है. तो एंड टू प्रूव AD इक्वल्स टू AE, ये साइड AD और ये AE आपको इक्वल प्रूव करनी है. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू AC इज गिवन टू अस. तो जब साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. तो AC का अपोजिट एंगल B और AB का अपोजिट एंगल C. तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हो गया बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी. तो AB इक्वल्स टू AC, so angle B equals to angle C, angles opposite to equal side of a triangle are equal. Now you will take these two triangles. Which one? ABE, this one, this triangle ABE, and second triangle you will take this one, AC and D. Okay. Now up in this what the three things are equal? AB equals to AC, it is given, and angle B equals to angle C अभी हमने ऊपर प्रूव किया है तो proved above, and BE equals to CD, it is given in the question. ठीक है. तो triangle AB congruent to triangle ACD by SAS rule, two sides and angle between them. तो AE equals to AD आपका क्या हो गया, by CPCT हो गया. तो AD equals to AE, hence proved.
ना अब इसका एक ऑल्टरनेट मेथड और है, एंड वो अल्टरनेट मेथड क्या है, इसके टू अल्टरनेट्स मेथड है. वन अल्टरनेट मेथड इट इज़ गिवन इन योर बुक, तो यू कैन see the solution from the book also, and one I have solved here. alternate method क्या है इसमें, the same thing, triangle ABC, AB equals to AC, तो एंगल B equals to एंगल C, ये तो आपको सेम करना है. अब सेकेंड थिंग, ट्राइंगल, विच ट्राइंगल you will choose, triangle ABD, these two triangles you will choose, these small two triangles, triangle A, B and D, this one, and second thing, triangle A, E and C, this one, these two triangle you will choose. अब now in these two triangle, which three things are common, which three things are common, एक तो AB equals to AC given to us, angle B equals to angle C already we have proved, and BE equals to CD is given to us. अब यहाँ पे BE equals to CD, BE equals to आपका ये CD है, ठीक है. अब ये BE इस स्मॉल ट्राइंगल में तो आ ही नहीं रहा है, और ये जो आपका CD है ये भी इस वाले स्मॉल ट्राइंगल में नहीं आ रहा है. तो अब आपको BE इक्वल्स टू थर्ड थिंग के लिए क्या करना है, BE इक्वल्स टू CD इज़ गिवन टू अस. अब आपका BE बना कैसे, BD प्लस DE से मिलकर, तो इसको हमने लिख दिया BD प्लस DE इक्वल्स टू. अब आपका CD कैसे बना, CD आपका बना, ये आपका पूरा CD है, CD आपका बना DE प्लस EC से मिलकर, तो हेयर आई एम राइटिंग DE प्लस CE. अब व्हेन यू विल कट DE बाय DE, DE से DE कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या बचा, BD इक्वल्स टू CE. अब देखो BD इस स्मॉल वाले ट्राइंगल में है और CE इस स्मॉल वाले ट्राइंगल में है, ये आपका BD हो गया और ये आपका CE हो गया. तो जो आपको गिवन है क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है, अब थ्री थिंग्स, ये स्मॉल ट्राइंगल और ये स्मॉल ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है. क्वेश्चन में गिवन है AB इक्वल्स टू AC. अब क्योंकि AB इक्वल्स टू AC टू साइड्स इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल हमने इक्वल कर लिए, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C. तो फर्स्ट थिंग तो ये इक्वल हो गई, सेकंड थिंग ये इक्वल हो गई, और थर्ड थिंग जो हमको क्वेश्चन में गिवन है BE इक्वल्स टू CD, और सॉरी BE इक्वल्स टू CD. हाँ, तो अब BE आपका कैसे बना, उसको ब्रेक करके लिखना है. BE आपका कैसे बना है, BD प्लस DE से मिलके, और CD आपका कैसे बना है, DE प्लस EC से मिलकर. अब DE से DE कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, BD इक्वल्स टू EC. ये आपकी थर्ड थिंग इक्वल हो गई. तो टू साइड एंड वन एंगल, तो कौन से वाले कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा SAS, एंड सो AD इक्वल्स टू AE बाय CPCT. तो आई हैव डन टू सॉल्यूशंस हियर, एंड यू विल टेक ओनली वन विच इज़ सूटेबल टू यू. जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे भी आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए, यू विल टेक दैट सॉल्यूशन ओनली. नाउ example number 7, AB is a line segment, P and Q are points on opposite side of AB such that each of them is equidistant from the point A and B. See the figure, show that line PQ is perpendicular bisector of AB. अब यहाँ पे आपको ये फिगर गिवन है, ठीक है. AB is a line segment and P and Q are, ये this one is the line segment, ये आपका पॉइंट P हो गया और नीचे आपका पॉइंट Q हो गया, ये अपोजिट साइड ऑफ AB है, ठीक है. अपोजिट साइड ऑफ AB होने से क्या हो गया, ईच ऑफ देम इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, मतलब PA इक्वल्स टू PB गिवन है और QA इक्वल्स टू QB गिवन है, ठीक है. नाउ शो दैट द लाइन PQ इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब आपको शो क्या करना है कि ये जो लाइन PQ है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का मीनिंग है 90 डिग्री फॉर्म करना, और बाइसेक्टर का मीनिंग है AB लाइन को बाइसेक्ट करना, मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है. इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है, ये एक तो एंगल C आपको 90 डिग्री प्रूव करना है, एंड सेकेंड थिंग AC इक्वल्स टू BC आपको प्रूव करना है. तो हेयर इट इज़ रिटर्न इन द सॉल्यूशन. First we will write the given things, AP equals to PB and AQ equals to BQ, and to prove PQ is perpendicular bisector of AB means AC equals to BC प्रूव करना है, and angle ACP equals to 90 डिग्री प्रूव करना है.
अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक दीज टू ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल PAQ, एंड सेकेंड ट्राइंगल यू विल टेक दिस वन, ट्राइंगल PBQ, ये जो बड़े वाले ट्राइंगल्स हैं। अब इनमें एज यू कैन सी वेरी सिंपल इट इज़, PA इक्वल्स टू PB, QA इक्वल्स टू QB एंड दिस PQ इक्वल्स टू PQ, क्या हो गया इसका कॉमन। तो SSS से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, बाय SSS कॉन्ग्रेंसी ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। नाउ अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से आपको क्या करना है, APQ एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल BPQ, एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल BPQ, ये वाले एंगल्स आपको CPCT से इक्वल बताना है। APQ दिस वन एंड BPQ दिस वन, मीन्स आप यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख सकते हो, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। नाउ आफ्टर दैट यू विल टेक दीज टू स्मॉल ट्राइंगल्स, दिस वन, फर्स्ट वन इज PAC एंड सेकेंड वन इज PBC। जब आप ये दोनों ट्राइंगल लोगे, अब आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। अब नाउ ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे, फर्स्ट थिंग इट इज़ गिवन AP इक्वल्स टू BP, ठीक है। सेकेंड थिंग एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमने अभी ऊपर प्रूव किया है, एंड थर्ड थिंग दिस PC इक्वल्स टू PC, मीन्स दिस साइड दिस एंगल एंड दिस साइड। तो ऐसे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंट हो गए, स्मॉल वाले दीज टू ट्राइंगल्स, ये दोनों ऐसे आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स ऐसे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, देन अगेन हियर यू कैन राइट एंगल 3 एंड एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 आपका क्या हो जाएगा, बाय CPCT हो जाएगा, ठीक है। अब जब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हमारा बाय CPCT हो गया, और सेकेंड थिंग क्या हो जाएगी इसमें, इक्वल AC इक्वल्स टू BC बाय CPCT, जो हमको प्रूव करना था यहाँ पे, AC इक्वल्स टू BC, दिस AC एंड दिस BC। एक तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT एंड AC इक्वल्स टू BC बाय CPCT, दो चीज़ें इन स्मॉल वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने से बाय CPCT आपका इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, जो हमको प्रूव करना था AC इक्वल्स टू BC तो सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए एंगल ACP को 90 डिग्री करना है। अब अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 किया था, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, कैन वी राइट दिस, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, अब यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 3 आई कैन राइट एंगल 3 प्लस एंगल 3, एंगल 4 को भी एंगल 3 लिख दिया क्योंकि 3 इक्वल्स टू 4 है, तो 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 3 का नेम क्या है, एंगल ACP, जो हमारा यहाँ सेकंड पार्ट है, एंगल ACP इक्वल्स टू 90 डिग्री, या तो एंगल ACP इक्वल्स टू 90 डिग्री या फिर एंगल BCP इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये आपके दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक दीज टू ट्राइंगल्स, पहले तो ये बिग वाला ट्राइंगल लेना है और इसके साथ में ये वाला ट्राइंगल लेना है, दिस वन। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट करना है, तो SSS से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। देन हियर यू विल टेक एंगल 1 एंगल 2 एंड हियर यू विल टेक एंगल 3 एंगल 4, ठीक है। तो जब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT से हो जाएगा, तो अब आपको ये स्मॉल वाले टू ट्राइंगल्स लेने हैं, ये वाला फर्स्ट ये वाला एंड सेकेंड दिस वन, ठीक है। अब इसमें आपका किससे होगा, ये SAS से हो जाएगा आपका ये, ठीक है, टू साइड्स एंड वन एंगल। तो ये आपका हो गया, ये दोनों ट्राइंगल्स जब आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलके 180 डिग्री लीनियर पेयर बना रहे हैं। एक तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा, एंड सेकेंड थिंग, और सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू BC हो जाएगा। तो ये आपका पूरा सम सॉल्व हो गया। ये ऐसे आपका सेकेंड वाला ट्राइंगल
स्मॉल वाले कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो एक तो ए सी इक्वल्स टू बी सी बाय सी पी सी टी हो जाएगा, और एंगल ए सी बी इक्वल्स टू बी सी पी मतलब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A. See the figure 7.38. Show that the line AP bisects the angle between them. P is a point equidistant from two line L and M intersecting at point M. ये आपकी लाइन L है और ये आपकी लाइन M है, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और P इज़ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन। अब P एक पॉइंट है जो कि इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, मीन्स BP इक्वल्स टू CP, इट इज़ गिवन टू यू, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, P इज़ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन L and M, तो इसका मतलब क्या हो गया, BP इक्वल्स टू CP, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको शो क्या करना है कि AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। ये जो AP लाइन है ये एंगल बिटवीन देम मतलब इन टू लाइंस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इस एंगल को, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो हेयर वी कैन राइट एंगल 3 and 4 एंड हेयर वी कैन राइट एंगल 1 and 2, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट करना है, शो करना है आपको एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। और गिवन है हमको BP इक्वल्स टू CP, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री, एंड थर्ड थिंग AP इक्वल्स टू AP। तो अब देखो ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट हाइपोटेनियस AP इक्वल्स टू AP हो गया, ठीक है। और थर्ड थिंग क्या हो गई आपकी, BP इक्वल्स टू CP मतलब एक साइड हो गई। तो RHS कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। Here it is given to you in triangle PAB and PBC. PB equals to PC, it is given to you. Angle PBA equals to angle PCA, इसको मैंने नेम दे दिया था एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, हाइपोटेनियस AP इक्वल्स टू हाइपोटेनियस AP। तो ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये साइड हो गई। तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो आपका एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल PAC मतलब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT हो गया। सो AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, हैंड्स प्रूव्ड। तो दीज वर योर 4 examples, example number 5, 6, 7 and 8. Do these examples in your notebook. In exams the examples also will come, so do the practice of these examples and do these examples in your copy. Thank you.